Yesterday we have done the questions of the geometric progression, discussing more of the questions of this exercise 7 9.3. Let us see the question number 22. If the pth and items of GP are in A, B and C. So the question number 22, let first term of GP be capital A and common ratio be capital R. Given a pth term, the pth term is A, qth term is B and r's term is C. It means that A r to the power p minus 1 is equal to A r to the power q minus 1 is equal to B, A r to the power small r minus 1 is equal to C. Taking the first, second and third. Now what do we have to show? We have to prove that A to the power q minus r, B to the power r minus B, C to the power p minus q, it is equal to 1. Simply what we have to do, we place only the values of small a, b and c from the first, second and third. So it's a r to the power p minus 1 to the power q minus r. B के लिए रखेंगे a r to the power q minus 1 to the power r minus p. Then a r to the power r minus 1 to the power p minus q. So in this it becomes a to the power q minus r to the power p minus 1 into q minus r, a to the power r minus p, r to the power q minus 1 into r minus p, a to the power p minus q, r to the power r minus 1 into p minus q. So it gives you a to the power q minus r plus r minus p plus p minus q, and r to the power p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q. It gives you a to the power 0. R to the power, it will be pq minus pr minus q plus r plus qr minus pq minus r plus p plus pr minus qr minus p plus q plus pq minus pr plus pr minus q plus q minus p plus p minus r plus qr and minus qr. All terms get cancelled. So a to the power 0, r to the power 0, so finally the answer is 1. And we have to prove its product is equal to 1. See the another question, see the question number 23. In the question number 23, it is saying if the first and the nth term of GP are A and C, A, B. First term of GP given है A है और nth term that is A n is equal to B given है. Let us take common ratio BR, therefore A n is equal to B, A r to the power n minus 1 is equal to B, r to the power n minus 1 is equal to B upon A and r is equal to B upon A to the whole power 1 upon n minus 1. जब पावर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, which becomes the reciprocal of the power on this side. जैसे हम स्क्वायर होता है x square is equal to y लिखा होता है, तो x क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ y. स्क्वायर रूट ऑफ y मीन्स y टू द पावर हाफ. तो जब पावर को शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, इसमें उसके हाफ हो जाएगी. तो ऐसे यहाँ पर पावर कितनी है n minus 1. इफ शिफ्ट ऑन द अदर साइड इट बिकम्स 1 upon n minus 1. Now we have to prove something here. We have to appease the product of n terms हमें given है. Now since p is equal to a into ar square and so on up to ar to the power n minus 1. उसने कहा है p क्या है, इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अप टू n टर्म्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है. सो a क्या हो गया, a की पावर हो गई n, r की पावर 1 प्लस 2, ये 1 है, प्लस 2 and so on up to n minus 1. The powers get added. If they have the same basis, then power get added in the multiplication. So a to the power n, ये AP है, फॉर्मूला लगा लीजिए n अपॉइंट टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो कितना बनेगा, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉइंट टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a टू द पावर n, r टू द पावर n minus 1 into n upon 2. Now
प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द होल पावर एन हमें शो करना है. सो लेट अस टेक द राइट हैंड साइड, ए बी टू द होल पावर एन कह रहा है ना, तो पी स्क्वायर है, हम यहाँ पी स्क्वायर हम लेके चले हैं ए और बी, बी ए टू द पावर एन है वैसे. Now p square is given by a to the power n r to the power n minus 1 upon 2 into n whole square. As the left hand side कितना हो गया यहाँ पर, a to the power 2n r to the power n minus 1. और राइट हैंड साइड क्या है, a b to the whole power n. a is a here, b क्या है, सिंपली ए एन था, ए आर टू द पावर एन माइनस 1. तो ए स्क्वायर आर एन माइनस 1 इट बिकम्स ए टू द पावर 2n आर टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल आ रहा है. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो मतलब ये जो हमने यहाँ किया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे छोड़ सकते हैं. क्लियर. 24th क्वेश्चन भी देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये. In the 24th question, it is saying show that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1 to 2n term. मतलब पहले तो ये मानते हैं let us take first term of GP be A and its common ratio be R. तो मुझे कह रहा है sum of first n terms that is Sn, ratio sum of टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू n प्लस 1 से लेके 2n तक, मतलब an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू a2n तक की रेशियो इस 1/Rn. हमें ये दिखाने से जो रेशियो आएगी 1/r टू द पावर n. अब क्या करेंगे इसको, ये तो Sn है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, S2n माइनस Sn. 2n टर्म्स में से हमने फर्स्ट n टर्म्स को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या आ जाएगा, द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n. सो नाउ Sn अपॉन S 2n माइनस Sn. फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर इसका. Sn इज गिवन बाय n अपॉन 2, इट इज सॉरी a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. और नीचे क्या आएगा, a r टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. जीपी का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का. सो क्या मिलेगा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. एलसीएम लिया हमने, a r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 कैंसिल, a कॉमन ले लेते हैं, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n प्लस 1. a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया. r टू द पावर 2n एंड r टू द पावर n, व्हाट डू कैन वी टेक कॉमन फ्रॉम इट, वी कैन टेक r टू द पावर n फ्रॉम इट. इट इज r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n, r टू द पावर n माइनस 1 कैंसिलिंग इट, वी गेट 1 अपॉन r टू द पावर n. ये हमें शो करना था इसके अंदर. कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं इसको. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 25. क्या दे रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, पहले मानते हैं कि लेट कॉमन रेशो बी आर सिंस ए बी सी डी आर इन जी पी. इसका मीनिंग क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, बी द सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म एंड डी फोर्थ टर्म है. देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी किसके को आ गया, ए आर, सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यू, क्योंकि बी सेकेंड टर्म है, सी इज़ द थर्ड टर्म एंड डी इज़ द फोर्थ टर्म. नाउ प्रूफ क्या करना है हमें, वी हैव टू शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें को दिखाना है ए जी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। फिलहाल हमें लेफ्ट हैंड चाहिए। प्लेसिंग द वैल्यूज हेयर, ए की वैल्यू क्या है ए, बी ए आर स्क्वायर, सी ए आर स्क्वायर, ए होल स्क्वायर हो गया। फर्दर ये बी स्क्वायर का बनेगा ए आर होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ए आर क्यूब होल स्क्वायर। इस समय से ए स्क्वायर कॉमन लिया हमने 1 प्लस आर स्क्वायर आर टू द पावर 4। यहाँ से हमने कॉमन लिया ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर आर टू द पावर 4, तो ये स्क्वायर आर टू द पावर 6 आएगा। तो स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर टू द पावर 4। इट बिकम्स ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर। या क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक द राइट हैंड साइड हियर। क्या प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ए इंटू ए आर। बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। सब में से कॉमन क्या लिख सकते हैं, अब ए आर तो कॉमन ले सकते हैं सब में से, ए आर एस कॉमन, ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी 1 आर स्क्वायर आर टू द पावर, ये 5 है, एक आर ले लें तो आर टू द पावर 4। ये प्रूफ करना था हमने। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं इसमें। The question number 27, find the values of n so that a to the power n plus b to the power n plus 1। पहले लिखेंगे सिंस a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 अपॉन a to the power n plus b to the power n। हमें क्या दिया हुआ है, इस ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे क्वेश्चन एक AP में भी था अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। तो लिखेंगे इस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b, नो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is equal to square root of ab। a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n ab to the power half, multiplying a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 a to the power n plus b to the power n a to the power half b to the power half। so a की पावर n plus 1 b की पावर n plus 1 ए की पावर कितना हो गया n प्लस हाफ बी टू द पावर हाफ, ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर n प्लस हाफ, ए टू द पावर n प्लस 1 माइनस ए टू द पावर n प्लस हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर n प्लस हाफ माइनस बी टू द पावर n प्लस 1। कॉमन लेंगे यहाँ पर ए की पावर n प्लस हाफ, ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ। यहाँ से कॉमन लेंगे b टू द पावर n प्लस हाफ एज कॉमन, तो क्या रह गया a की पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ, गेट कैंसल और यू कैन डिवाइड इट। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b टू द पावर n प्लस हाफ, इधर 1 आ गया, इट कैन रिटन एज a अपॉन b टू द पावर, इन द प्लेस ऑफ n यू कैट a अपॉन b टू द पावर 0। 0.3। सो कंपेयर कीजिए इसको, n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चंस 27 तक कंप्लीट कर लीजिए।
दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देन वी आपकी अगली एक्सरसाइज टू सम इन एंड टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज है दैट इज डिलीटेड दिस ईयर बाय CBSE, तो वी डोंट हैव टू डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिलहाल इसी के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे 9.3 के और कुछ मिसलेनियस बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।